I am Dr. M.L. Ali, Clinical Director, Brahmanand Narayan Multi-Specialty Hospital, Jamshedpur. With me is Dr. Wahid Khan, is the Senior Consultant Nephrology, Brahmanand Narayan Multi-Specialty Hospital, Jamshedpur. On the occasion of World Kidney Day, that is on 11th March, we are going to discuss. The theme of this World Kidney Day is living well with kidney diseases. Dr. Wahid, why this theme was taken this year? I mean, the theme is the way this kidney disease is increasing in its prevalence. So one has to not being afraid of kidney disease, and we should learn how to live with it. Now it is said after an older age, 1 in every 5 patients used to have kidney disease after 60-70 years of the age. So one should be able to aware of what should be the clinical sign and symptom which can lead to kidney disease when you have to get yourself investigated for kidney disease, and how to live with it without any fear, without any problem, including what to eat, what not to eat, and what medication to be taken. This is about awareness, that we should not be rather afraid of this. We should try to live with it, since we all know with older age, after 40 years, our kidney weakens. So obviously after 70 or 80 years of the age, it's a natural way. Kidney also ages and it's become weaker compared to a younger population. So sometimes a patient get himself tested after 75 years of the age, and at that time he found to have high creatinuria level, and he get disturbed on knowing this thing that his kidney is not functioning well. But that's not actually, it's not functioning well, it's aging in that way. That's normal for that person. That thing has to go to all the people. And it's not only the person who get all sort of psychological stress because of the disease, whole family get under psychological stress. That fear has to be excluded. Yeah, Dr. Wahid. We are aware that the kidney diseases are increasing actually. The numbers are increasing day by day, and it is becoming more rampant. So what are the main causes of this increased number of kidney diseases in our society? In India, sir, again the most common cause of any kidney problem is diabetes. Second common cause is hypertension. Obviously diabetes and hypertension which are uncontrolled for so many years, for a decade. Third comes to be some vascular diseases or some medication which affect the kidney, out of counter medication which patient takes as a supplement, as a rejuvenant, or so many things, that also causes kidney damages. Then also, being in endemic country, we used to have diarrhea, dysentery episodes, sometimes malaria used to happen. This also damages kidney. So it's a long list. Apart from other common causes, like you must be aware of kidney stones in older age, when they develop prostate disease, that one can give rise to kidney diseases and weakness. Next thing is that how can you make people aware that these are the few symptoms in the early part of the kidney disease where people can think that there may be some problem in the kidney diseases? That's a really good question. In fact, in Indian data, around 45% of the patients who come to nephrologist actually come in stage 4 or 5 of CKD. I mean, the kidney disease is chronic kidney disease divided into 5 stages, and it's the last 5th stage on which one required to have either transplantation or dialysis. Unfortunately, majority of the patient, half of the patient who come to us when their kidney are already in the stage 4 or 5. So early 1 to 3 stage is already lost just because of this unawareness about the kidney symptom and sign. One of the most important sign and symptom of being a kidney disease is blood pressure, high blood pressure. Any young person who detect blood pressure for the first time to be high because of any cause, that's what happened. हम कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, सर में दर्द हो रहा है या कुछ तकलीफ हो रही है, चक्कर आ रहा है, वो फर्स्ट टाइम कोई एक देखता है फिजिशियन, वो बताता है कि बीपी हमारा ज़्यादा है। यही पहला साइन होता है।
तो कोई भी हाइपरटेंसिव पेशेंट जो पहली बार पता चल रहा है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, सबसे पहले उसको किडनी के लिए टेस्ट कराना चाहिए। और किडनी के लिए टेस्ट के लिए 3 तरह के टेस्ट होते हैं, ब्लड हो, यूरिन हो एंड अल्ट्रासाउंड हो। हमको लगता है अगर ये रेगुलर हो सर तो 50% से ज़्यादा पेशेंट का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा बदन का फूलना, पैर का फूलना, भूख नहीं लगना प्रॉपर, उल्टी होना बार बार, खून का कम हो जाना, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत आना, या नहीं तो बाल गिरना, बहुत सारा सिम्टम है, सांस फूलना, ये सारे सिम्टम भी जो है उसी के वजह से होते हैं। या नहीं तो पेशाब में तकलीफ होना, ज़्यादा पेशाब होना, रात के वक्त बार बार उठ करके पेशाब जाना, या पेशाब करते वक्त झाग होना, वो पूरा पैन में झाग भर जाना, ये सब भी सिम्टम किडनी डिजीज के ही हैं। ओके, आप ये बता सकते हैं कि इन ब्रॉड गाइडलाइंस क्या होते हैं किडनी डिजीज के ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या होते हैं, किस तरह का, क्योंकि अगर किसी को किडनी डिजीज का डायग्नोसिस होता है लोगों में एक दहशत फैल जाती है एक्चुअली, तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको इसका डट के मुकाबला करना चाहिए या इसका हम लोग उपचार करना चाहिए। तो ब्रॉडली आप कैसे इसको ट्रीटमेंट को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? ये किडनी डिजीज को सर ब्रॉडली दो क्लास में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाता है एक्यूट किडनी इंजरी, AKI शॉर्ट फॉर्म में। इसमें पेशेंट पूरा रिकवर कर जाता है। किसी को डायरिया हुआ, डिहाइड्रेट हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, मलेरिया हो गया, इस सब से भी किडनी खराब होती है, वो हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते में वो आहिस्ते आहिस्ते पूरा रिकवर कर जाता है। इस बीच अगर बहुत ज़्यादा किडनी खराब रहती है तो शुरू में 2-4 सेशन डायलिसिस करना पड़ता है पेशेंट का जान बचाने के लिए, पर पेशेंट रिकवर कर जाता है। कुछ बीमारियों में ग्रेजुअली आहिस्ते आहिस्ते किडनी डैमेज होता है जो रिकवर नहीं करता है, वो कहलाता है CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज। ये बहुत कॉमन है अपने यहाँ, जैसे डायबिटीज में जो किडनी खराब होते हैं, ब्लड प्रेशर से जो किडनी खराब होते हैं, वो CKD होते हैं। इसमें भी सर बहुत टाइम लगता है। डायबिटीज की बीमारी से अगर शुरू हुई है तो उससे कम से कम 10 साल लगता है, तब जाके किडनी की बीमारी शुरू होती है। और किडनी की बीमारी जो डायबिटीज में शुरू होती है उसमें सबसे पहले पेशाब में प्रोटीन आना शुरू होता है। प्रोटीन आता है 5 साल तक, तब जाकर के पैर फूलना शुरू होता है, तब जाके ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, उसके बाद क्रिएटिनिन बढ़ता है, तब आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते बढ़ते आपका जो जरूरत आता है डायलिसिस का, ये भी 10 साल का स्पैन है। तो कोई भी डिजीज ऐसी नहीं रहती जिसमें सडनली इस तरह से खराब हो। कुछ बीमारियां हैं नो डाउट, उसको छोड़ के 95% में ये सालों तक ये बीमारी चलती है, और सालों तक इसका जब इलाज नहीं होता है तभी ये उस स्टेज में पहुंचती हैं जब ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की जरूरत आती है। नहीं तो ये 20 साल ये यूं ही दवा से ही चल जाता है काम। इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। हम सिर्फ ट्रीटमेंट कराएं, डॉक्टर को टाइम टू टाइम दिखाएं और इलाज कराते रहें, और मिनिमम दवाएं, खास करके ब्लड प्रेशर की जो दवाएं रहेंगी उसको ध्यान से खाएं, तो सालों ये बीमारियां चलती हैं दवाओं के साथ। जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन बीमारियां चलती हैं, वैसे ही किसी भी किडनी प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि उसको सीधा जाके डायलिसिस कराना है और ट्रांसप्लांट कराना है। आपको मालूम होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन हमारे मुल्क में कोई कंट्रोल्ड ये नहीं है। कुछ भी लोग जाके फार्मेसी में ऐसे बोल के ले लेते हैं विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। तो इससे काफी सारा ड्रग्स जो है वो किडनी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो लोगों को पता नहीं रहता, वो लोग जाते ऐसी फार्मेसी से खरीद लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, चाहे पेन किलर हो, बहुत सारी मेडिसिन है। और कुछ लोग कुछ दूसरा टाइप्स का मेडिसिन भी लेते हैं जिसका कोई पता नहीं है ये हार्मफुल है या कितना हार्मफुल है, कितना मददगार है, ये भी नहीं होता। तो ऐसे आप बता सकते हैं कौन कौन सा मेडिसिन से हम लोगों को परहेज करनी चाहिए किडनी को बचाने के लिए? सर आपका कहना सही है, और ये हमारे क्लिनिशियन के लिए भी बहुत अभी कंफ्यूजन का माहौल हो गया है। एक होती हैं जो जनरल डॉक्टर्स के थ्रू मेडिसिन चलती है, जो यूजुअल मेडिसिन होती है, यूजुअल थेरेपी होती है। एक होता है मेडिसिन वो ग्रुप
जिसको कोई जनरली डॉक्टर एडवाइस नहीं करता है। वो किसी के कहने से हम खा लेते हैं, तो दवाई दुकान से खरीद कर खा लेते हैं, या कोई विटामिन रिजुविनेट के नाम से खा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन। Unfortunately, for years अब gradually ये self medication has markedly improved, और इसमें ज़्यादा फाइनेंशियल और मार्केटिंग इन्वॉल्व है। सब कंपनियां अपनी मेडिसिन बेचने के लिए उसको एक फैसिनेटिंग नाम देती हैं, रिजुविनेट के नाम से, हेल्थ प्रोमोटर के नाम से, विटामिन के नाम से। लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसका कोई रिसर्च नहीं होता है, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है कि वो एक्चुअली डैमेज करेगी कि नहीं करेगी, करेगी भी तो किस ऑर्गन में करेगी, और अगर कर देगी तो उसके लिए एंटीडोट क्या है, या कैसे हम बीमारी को रिवर्ट करेंगे। ये ज्यादा डेंजरस है। पेन किलर नो डाउट हमारे लिए एक ऐसी मेडिसिन है जिससे किडनी खराब होता है, पर हमारे लिए इजी होता है वैसे पेशेंट को ट्रीट करना जो पेन किलर खा के आता है। हमको पता रहता है पेन किलर ये खाया है, तो अगर ये पेन किलर खाया है तो इसका ये साइड इफेक्ट होगा, इसको इस तरह से हमको ट्रीट करना है। पर ये जो अल्टरनेट मेडिसिन होती हैं सर, इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग को नहीं पता होता है। वो एक रीजन रहता है कि पेशेंट प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो पाता है, अल्टीमेटली सीकेडी होकर के डायलिसिस में जाता है। उससे एकदम बचना है। दवा जैसा ले। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रॉब्लम है आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई दवा नहीं दें। आपका ट्रीटमेंट खत्म हो, दवा बंद करें। दूसरा एडवाइस है कि आप दूसरे को दवा एडवाइस मत करो। हर दवा का साइड इफेक्ट है, किस में कौन सा साइड इफेक्ट करेगा, कौन सा ऑर्गन डैमेज करेगा। तो आपसे सबसे निवेदन है, अगर आपके रिलेटिव, आपके कोई भी नोन टू जिसको आप सही में केयर करते हैं, आपसे कुछ मांगते हैं एडवाइस, किसी बीमारी में इन्वॉल्व है, उनको ये रिक्वेस्ट करें कि वो डॉक्टर को दिखाएं, दिखा के दवा लें। आप खुद से एडवाइस मत करो प्लीज। देखिए, किडनी डिजीज एक ऐसा है कि जहाँ फूड रेस्ट्रिक्शंस का एक अहम रोल होता है। Compared to other diseases, kidney disease is one of the important diseases where the food restriction has अगर आपका किडनी खराब हुआ है तो आपको उसको कुछ कंट्रोल्ड फूड इंटेक होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन कौन सा फूड्स अवॉइड करना चाहिए और कौन कौन सा फूड में किडनी डिजीज का कोई ज़्यादा असर नहीं होता? सर, ये सही आपने क्वेश्चन पूछा। फ्रूट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे मिथ हैं, और अगर सारे मिथ को आप एक तरह से समराइज करके बताएं जो रिकमेंडेशन है, तो इंडियन पॉपुलेशन में हमारे यहाँ फूड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी किडनी वाले पेशेंट में। अपार्ट फ्रॉम ए फ्यू थिंग, 2-4 चीजें छोड़ करके वो नॉर्मल जिंदगी जिएगा, नॉर्मल खाएगा पिएगा। खाने में नमक कम रखना है जो सबसे जरूरी होता है, वो भी सबके लिए नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें नमक उल्टा ज्यादा भी देना पड़ता है, तो ये बात समझ लें। इसीलिए किडनी के डॉक्टर को दिखाना है, वो आपको एडवाइस कर देगा क्या खाना है। नहीं तो मेजॉरिटी में जो है नमक की कम लेने की जरूरत है। इसके अलावा फ्रूट्स अवॉइड करना है, ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक, जूस, ये सब अवॉइड करना है। बाकी आप सारा नॉर्मल खाना खा सकते हो, कोई प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन की इंडियन पॉपुलेशन में जरूरत नहीं है। हमारे नॉर्मल डाइट में ऑलरेडी हम लोग प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है, अंधविश्वास है लोगों के बीच में कि किडनी का प्रॉब्लम हो गया तो प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करना है। ये झूठ और धोखा है, और इसके वजह से 2-4-5 साल के बाद सारे पेशेंट वीक हो जाते हैं, उनका मसल पूरा जो है वेस्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली सर भी देख रहे हैं पेशेंट, ज्यादातर ऐसे पेशेंट उसी माल न्यूट्रिशन की कॉम्प्लिकेशन की वजह से हॉस्पिटल में आके मरते हैं। तो ये एकदम उल्टे डायरेक्शन में चला जाता है ट्रीटमेंट। इसीलिए खाने का डिटेल आप जो है डॉक्टर से पूछ लें, या नहीं तो आप जो है डाइटिशियन से पूछ लें क्वालिफाइड। लेकिन एज ए होल बस एक बात समझ लो कि इंडियन पॉपुलेशन में हमें खाने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करना है, नॉर्मल डाइट रहेगी। और आखिर में आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऑन दिस ओकेजन ऑफ वर्ल्ड किडनी डे आप जनरल पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हैव ए हेल्दी किडनी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, और we should avoid any controversy, any confusion, any misconception we have related to kidney disease by asking any nephrologist rather than
moving on here and there and searching for website or talking to a person who is not a nephrologist. अपने अंदर जो भी मिथ है, मिसकंसेप्शन है, उसको हटाएं, इसके साथ जीना सीखें हम। और ये फॉर्चुनेटली अभी भी बीमारी ऐसी है कि देखने में बहुत बड़ी लगती है पर ऐसी नहीं है। हम मिसमैनेज करते हैं तभी ये बीमारी पूरी खराब होती है। नहीं तो किडनी के साथ लाखों यहाँ पर पेशेंट हैं, सालों आराम से जी रहे हैं, आराम से जिंदगी अपनी बिता रहे हैं। इसके बाद भी अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तब भी ट्रांसप्लांट हो सकता है, जो वाइडली अवेलेबल है। आजकल तो लगता है कि लिटरली हर शहर में हो रहा है। 95% से सक्सेस रेट ज्यादा है हर जगह, और जितने कम कॉस्ट में इसमें ट्रांसप्लांट होता है, हमको नहीं लगता है कोई और ट्रांसप्लांट होता है। तो अगर आपका किडनी 0% भी काम कर रहा है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, तब भी आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है। आप अपनी पूरी जिंदगी नॉर्मल फिर से जी सकते हो। शायद ये फैसिलिटी बाकी ऑर्गन में नहीं है। सो ऑलवेज वी शुड लुक ऑन द ब्राइटर साइड। नो डाउट we should be careful about the diet, about the drugs, about the treatment, especially जो पेशेंट डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, जिनको किसी पेन किलर की जरूरत आती है जॉइंट पेन वगैरह के लिए, that has to be more careful। उनको जरा सा बीच बीच में 3 महीने में 6 महीने में एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। बस इतनी की जरूरत है। और पानी खूब पिए, पानी खूब पिए। कोई 1 साल 2 साल पहले ये इस तरह का वर्ल्ड किडनी डे का यही थीम ही था कि ऑफर ए ग्लास ऑफ वाटर, कि हम जिससे मिले खुद भी पानी पिए, उसको भी पिलाएं। इससे बहुत सारी बीमारियां, खास करके किडनी स्टोन की जितनी बीमारियां हैं, उससे हम बचे रहते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर भाई।